A very good morning, everyone, and welcome to the Than session today. So, we are today, first of all, welcome back from the 3-day holiday and hope you had a very happy Christmas. So, today we are in the last session of the ongoing series, which is the competition and comparison. Is it healthy? And today we will be having the question and answer session. So, we have Sangeeta Didi with us. Didi, over to you. Om Shanti. Shanti, and very, very not belated, I should say it's yesterday only. Very, very Merry Christmas to all of you. All must have enjoyed. So it's, we always say Christmas, matlab kishmish. Christmas का मतलब है कितना मीठा, sweet. And there is a beautiful significance behind this. All must have enjoyed it, no? So we mean by any festival कि dancing दीदी दीदी वॉइस नहीं आ रहा है आपका। पहले आ रहा था, अभी बंद हुआ। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। So good to see you back, and all must have done the homework also. This homework doesn't require special, even in holidays you can do this homework. सभी ने किया homework? Yes, no? ये तो लास्ट सेशन है और ये लाइफ का बहुत जरूरी होमवर्क है. See, if you miss many other homeworks is fine, but ये वाला homework हमको कभी मिस नहीं करना चाहिए. हाँ, किस किसने किया? And what was the homework, first of all? याद है homework तो कि नहीं याद है? Anushka Ben would say. We had to not compare, try to not compare and create such sort of difficult situation for ourselves also and for others also. Yeah. So, yeah, it was कि throughout the week, I will be behaving, not understanding that many deep sanskars are still there in the minds of all of them, in the minds of the people. And therefore, जो भी soul है उसको present view में नहीं देखना है, लेकिन उसके बहुत जन्मों के संस्कारों को देखते हुए ध्यान में रखना है. So, किसी का भी कुछ गलती हुआ, this feeling I should be having. So the wounds in the soul, so I will help to heal them. This was what we wanted to practice throughout the day. So let's not only, if not done, it's pending, मतलब मुझे करना है. और कब करना है, कब से करना है, आज से करना है. कुछ भी किसी की गलती देखी, लेकिन ये देखना है कि बेचारे के अंदर बहुत घाव है. And I don't know what are the घाव. ठीक है? Okay. So now we are towards the end, and today will be the question answer session, right? Yeah, so we'll just go through what all we had done about comparison and competition. Unknowingly, how are we comparing ourselves? And जितना हम compare कर रहे हैं, हम अपने आप को demotivate भी करते, दूसरे को भी demotivate करते. Comparison as an inspiration. Comparison not as an accusation. वो तो बहुत अच्छे से करते हैं, पहले तो तुम बहुत अच्छे से करते थे. तो मतलब एक एक्यूज करने के वे से कंपेयर करना, दिस ऑल्सो इज अ वेरी डीप. और देखो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला अगर हम याद रखें कि जिस सोल का, सोल इज इम्पेरिशेबल एंड उसमें जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी इम्पेरिशेबल है. तो जिसका जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आता जाएगा, इट्स लाइक अ ड्रामा.
ड्रामा में जिसका जब जब पार्ट होता है वैसा वो सामने दिखाई देता है। सो उसका पार्ट है इसलिए वैसा है। तो जब उसका पार्ट नहीं था तो वो नहीं करेगी। तो कंपैरिजन हमेशा एक मोटिवेशन हो, इंस्पिरेशन हो कि यस, और तब उसको कहेंगे हेल्दी कंपैरिजन। Just as an inspiration, just like we have the more inspiration of the statues, Mahatma Gandhi, the leaders, the saints, Brahma Baba. So that comparison, see how was the father, how was Mahatma Gandhi. So then it is more as I have to become like that. नहीं तो I am not like that, you are not like that. नहीं तो ये वाली फीलिंग आती है when you compare yourself with the things outside. But comparison only of the value system, and that too as an inspiration. नहीं तो कभी हम कहते वो तो कितना आज्ञाकारी है, तुम बिल्कुल नहीं हो। वो तो वो कितना सुनता है, तुम बिल्कुल नहीं सुनते हो। वैल्यूज से भी कंपैरिजन करते हैं ना, तो भी रॉन्ग। फिजिकल कंपैरिजन वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन, बट इवन वैल्यूज का। तो इसलिए कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डीप वुंड्स है, सबके अलग अलग वुंड्स है। तो इस कारण कंपैशन, केवल कंपैशन कि जो भी है जैसा भी है, बट आई एक्सेप्ट यू, दैट इज कंपैशन। और फिर दूसरा था कंपटीशन, दैट ऑल्सो वी लर्न कंपटीशन। एंड वन इज cut throat competition. मतलब just imagine the word itself, what does it mean? Itself like we are killing each other, cut throat competition. And दूसरा है healthy competition. First of all, इस competition जैसा कोई word होना भी चाहिए लाइफ में। cut throat वो तो out of question. It's like life is a game, and then it is a cut throat. Life is an enjoyment. Life is a journey. Happiness is a journey. It is not at the destination. तो गेम नहीं है, इसलिए वो लाइफ इज नॉट अ गेम। कि गेम का मतलब क्या है, पहले बहुत एफर्ट करो, टेंशन में रहो, एंड लास्ट में आपको वन ऑफ अस वुड बी सिलेक्टेड, एंड देन इट इज एन एंजॉयमेंट। और जो नहीं सिलेक्ट हुआ उसके लिए डिफीट है। तो दिस इज नॉट अ गेम। Life is a beautiful journey, and happiness is throughout. It's a journey, it's not a destination. तो इसलिए कंपटीशन बहुत छोटी छोटी, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, हमको लगता है कि नो, वी फील इनसिक्योर। तो कंपटीशन में जहां होगा ना, वो कंपैरिजन जो करेगा वो कंपटीशन की फीलिंग में आएगा, और वो इनसिक्योर होगा ही होगा। तो हैव अ गुड हाउस, हैव अ गुड कार, इट्स नॉट दैट वी शुड नॉट हैव इट, बट कंपटीशन का मतलब होगा आई शुड हैव इट better than him. But competition, competition, there is nothing called competition. It is just in your mind. You have to have a good house, good car, but not better than that person. ये जो better than him, better than that, वहां हमारा demotivation होता है. So it's just like, no, this Shivani Ban gives a very good example. You both are driving the car. Suppose you are driving the car. It's a beautiful journey from Delhi to Jaipur, and all of them are enjoying, खा रहे, पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और चला भी रहे हैं कार को. और all of a sudden there is a thought, let's race. So the other family in the other car, and this family in this car. And now that feeling, so अब रेस करना है, तो आगे जाना है, और आगे जाना है तो उससे मुझे आगे जाना है। एंड सपोज द कार, उसका कार है मर्सिडीज, आपकी कार है मारुति। मारुति और मर्सिडीज में रेस चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी डिफरेंट है,
तो उसके हिसाब से हम पहुंच नहीं सकते. सपोज आई एम इन अ मारुति एंड जो जितनी उसकी स्पीड है अब वो टू मच चलाएगा एंड नाउ देर इज अ रेड लाइट. The Mercedes as it is because the capacity is beautiful, so it is going ahead of me. But now there is a red light. I am in that Maruti. अब क्या हो जाएगा? Now is the time to go ahead because he has stopped, and I want to go ahead of that car. So I'll jump the red light. So this is how when there is a competition, we break the discipline. And discipline करके now secondly, earlier the focus used to be everywhere. मतलब we used to enjoy. There was nothing called rush. There was nothing called hurry. We were enjoying. और अभी क्या हो जाएगा all of a sudden? पूरा focus. Please, anyone, कोई बच्चा इतना सा कुछ करे, चुप, मुझे focus, मुझे concentration करने दो. ये कुछ कह रहा है, मुझे disturb मत करो. So now we are not enjoying the current scenario because the whole focus is I should be ahead of that. तो focus, enjoyment वाला focus चला जाता है and focus is on just to go ahead. And finally, as it is the capacity दोनों की different है, वो फिर भी आगे हो जाता है and they reach the destination earlier than you. तो फिर क्या कहते हैं, इतनी मेहनत की, इतनी एफर्ट की, बट फाइनली आई स्टिल कुडंट सक्सीड. सो दैट ड्राइविंग हैज नाउ बिकम एन एफर्ट. इट इज नॉट अ फन, it is not a feasting, but it is a effort. क्यों? क्योंकि फोकस उधर था. तो कंपटीशन मतलब the focus is on the other party and therefore you're not able to use your strength, your current enjoyment. जो मुझे मिल रहा है उसका हम एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां का फोकस है. तो therefore, और फिर उससे क्या हो रहा है, when you have that वहां पर फोकस होता है. अब उसके बाद अब वो तो अब जाके जैसे उसने वो मर्सिडीज वालों ने भी सोचा फाइनली आई रीच्ड, मैं तो उससे आगे हूं. सो सिंस आई एम बेटर देन हिम, तो मेरे को ईगो, एंड दैट ईगो मेक्स मी फील उसका छोटा मैं बड़ा. So I'm not ready to help that person. So either ways, either parties, जहां competition होता है, you try to distance each other from each other, or there is always an insecurity. एक बार एक IBM का मैनेजर था and well-to-do executive ED level. He called the sister and said कि was talking कि देखो मेरे पास सब कुछ है. And I've reached good heights also in my professional field, and I have everything around me. So I feel कि अब मैं slow down करूं. तो बहनों ने कहा, of course. हमने कहा बहुत अच्छा, very good idea. You can slow down. And since I've achieved also, I've received many awards also. तो मुझे जितना मिलना चाहिए मेरे हैसियत से भगवान ने मुझे ज्यादा ही दिया. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कर लूं और जल्दी से कर लूं. वेल, शुड गो अहेड. अच्छा, लेकिन अगर मैं पीछे हो जाऊंगा तो व्हाट इफ द अदर जूनियर्स विल गो इन फ्रंट ऑफ अहेड ऑफ मी, एंड दैटफॉर दैट इज अ कंफ्यूजन. क्या करूं, स्लो डाउन करूं या चलता जाऊं? नाउ जस्ट इमेजिन, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या प्रॉब्लम था? नॉट एबल टू एंजॉय इट, ऑलवेज इनसिक्योर. तो जहां कंपटीशन होगा ना, वहां फोकस ऑन अदर्स होगा, एंड देयरफॉर दैट, क्योंकि दूसरे पर फोकस है, नॉट फोकस ऑन द सेल्फ, दैट इनसिक्योरिटी चलती जाएगी. और जब चलती जाएगी, इट्स बिकॉज then happiness is always from कि दूसरा मेरे से आगे न चला जाए.
तो ये इनसिक्योरिटी है। कैन वी एंजॉय द लाइफ? तो इसलिए हैप्पीनेस इन अदर्स प्रॉब्लम। और कभी कभी व्हेन यू आर इन दैट कंपटीशन मोड, कोई दर्द में है, जैसे वो गाड़ी रुक गई, देन यू रियली फील कि हाँ, नाउ दिस इज द अपॉर्चुनिटी, मैं उससे आगे जा सकता हूँ। सो द फीलिंग वुड बी हैप्पीनेस इन अदर्स प्रॉब्लम, मीन्स अदर्स प्रॉब्लम is an opportunity for me to go ahead. I can move ahead. And therefore, life therefore becomes a competition. कि उस दूसरे की प्रॉब्लम को आज मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी, अच्छा हुआ उसका ऐसा हुआ। Somewhere we might be very maybe sympathetic outside, but एक deep inside लगता है अच्छा हुआ, या उसको मिल गया, उसको मिलना चाहिए, वैसे मिलना चाहिए। दिस इज द फीलिंग्स ऑफ द कंपटीशन। और फिर सोचते कि पीक पे पहुंच जाए, पीक पे पहुंचना, लेकिन अंदर इतना सब होकर व्हेन यू आर स्टिल, यू फाइनली गो अहेड एंड यू रीच एट द पीक, फिर बाद में वैक्यूम की फीलिंग आती है। क्यों वो खालीपन लगता है? क्योंकि वो कंपटीशन वाली स्टेट फीलिंग से आगे चल रहे थे। तो इसलिए when you do this, focus on your life, focus on my choices। मेरी चॉइस थी कि मुझे स्लो डाउन करना है, मुझे नहीं ये करना है, और I want to get rid of this feeling, and therefore there is a clear choice. I did that choice to stop it, to not to do this, and because of which there is no confusion, clear cut decisions, and finally when you reach the peak, you will 100% reach। एक फुलनेस है, चाहे जो भी लेवल पे मैं रीच गई, आई डिडंट बिकम एन एमडी, आई डिडंट बिकम डायरेक्टर, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी टू वॉट एवर आई हैव डन, आई हैव यूज्ड माय होल कैपेसिटी। तो कंपटीशन मतलब, देयरफॉर कंपटीशन, हैव अ गुड हाउस, नॉट गुड कार, बट नॉट बेटर देन एक्स। आई विल डू माय बेस्ट, better than my previous performance, but not in reference to your performance, and focus on self, not focus on others, and choosing my choices and priorities, not choosing their choices। उन लोग कह रहे थे ना, इसलिए मैं कर लिया। उन लोग आगे बढ़े थे ना, उन लोग ने ये किया ना, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इन फ्रंट ऑफ द सीनियर्स। तो इसलिए मैं उनके, मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन आई वॉन्ट टू शो माई सेल्फ वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ माई बॉस, तो इसलिए मैंने वैसे किया। सो वॉट एवर आई एम चूजिंग इज माई चॉइसेस एंड प्रायोरिटीज, नॉट चूजिंग देयर चॉइसेस। दिस इज कॉल्ड बीइंग फ्री फ्रॉम कॉम्पिटिशन। इज इट एसेंशियल? जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव मोड में रहे, और हर चीज में होती है। दो डॉटर इन लॉज में हो जाती है, होता है, दो सिस्टर्स में कंपटीशन, दो ब्रदर्स में कंपटीशन, कलीग्स में कंपटीशन। जस्ट इमेजिन वेयर वी आर हेडिंग। सो टू गेट rid of this, do your best, and I'm happy I've used my capacity, full stop। I have nothing in reference to his। I will do, I want a good car because I like it, not because, not better than them। Okay, so now we'll start with the questions। Okay, any questions? और क्वेश्चनलेस स्टेट सब सॉल्व हो गए मतलब। I think so, there is no questions सबके। So all have तो accepted। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि कॉम्पिटिशन की बात हो रही है कि कॉम्पिटिशन तो लाइफ में होनी नहीं चाहिए, बात ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन होनी चाहिए। हेल्दी कॉम्पिटिशन मैं कहूँगा, नॉलेज अर्निंग,
कंपटीशन होना चाहिए, हम क्या गेट कर सकते हैं, लेकिन किसी कंपेयर में नहीं करना चाहिए, सेल्फ अर्निंग अर्निंग के लिए होनी चाहिए। तो कंपटीशन होनी कंपटीशन तो चाहिए, होनी चाहिए, कंपेरि होनी क्या चाहिए। बोल रहे, कंपैरिजन होनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए, कंपेरिजन नहीं, होनी चाहिए। कंपेरिजन तो नहीं कर रहे, कंपटीशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ कंपेरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक का, हर इंडिविजुअल सोल का अपना आइडेंटिटी होती है, तो उस वहां पर तो हम कर ही नहीं सकते हैं कंपेयर। तो कंपटीशन का मतलब हुआ जो कि हम आगे बढ़ना का मतलब ये नहीं है जो सिर्फ रेस लगा रहे हैं। हम हेल्दी कंपटीशन का मतलब मैं जान समझता हूँ यहाँ पे कि अपने सेल्फ नॉलेज गेनिंग के लिए आप उसको अपने पे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप आगे बढ़ें, जितना कर सकते हैं आप करें उसके लिए। और चूंकि इंडिविजुअल को हर एक अलग अलग है, तो हर का आइडेंटिटी अपना अपना है, तो हम सबको कंपेयर नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को, जो हमारे इक्वल क्यों नहीं है, वो इक्वल हो नहीं सकते हैं कोई। तो कम अपने लेकिन गेनिंग के लिए हम कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, हम कितना कर सकते हैं, लेकिन हमने जो क्षमता होगी उसी के अकॉर्डिंग ही हम कर सकते हैं, कुछ ज्यादा हाँ कर नहीं सकते। या तो यही समझना है ना, जितनी हमारी क्षमता है वो फुल हम यूज करेंगे, हाँ, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी टैलेंट है, वो हम फुल यूज करेंगे, नॉट इन रेफरेंस टू हिम, उनके हिसाब से नहीं। क्योंकि उसने सपोज मेरी स्पीड हमारी गाड़ी की स्पीड 80 है, आपकी जी गाड़ी की स्पीड 120 है। जी। अब आपने सोचा कि चलो मैं उनके साथ कंपटीशन करूं, तो क्या होगा, 80 का लेवल आपने क्रॉस किया तो आप वैसे भी आगे हो, तो आप सोचेंगे ठीक है ना, मैं तो उससे तो आगे हुई, तो आपकी जो 120 वाली कैपेसिटी आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका आपका ये फीलिंग था कि मेरे से आगे चाहिए, वो मेरे से आगे हो गया। सो समटाइम्स वी माइट इवन अंडरमाइन अ कैपेसिटी अपने कंपटीशन, क्षमता का पूर्ण उपयोग जब करके आगे बढ़े। इन रेफरेंस टू होता है कि उससे अच्छा होना चाहिए, मेरा घर उससे अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चों के मार्क्स उससे ज्यादा होना चाहिए। बच्चा आता है स्कूल से एग्जाम देकर, कैसा हुआ पेपर, बहुत बहुत अच्छा नहीं हुआ, अच्छा, और उसके उसका पेपर कैसा हुआ, पड़ोसी वाले का, उसका भी अच्छा नहीं हुआ, तब तो ठीक है, मतलब ठीक है, इसका पेपर अच्छा नहीं हुआ लेकिन क्या सबका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो फाइन। कंपटीशन। हाँ समवेयर हम, अगर हम सिर्फ अपने बच्चों को उनके ही मार्क्स पूछते हैं, ऐसे कितने पेरेंट्स हैं, बिल्कुल उसके फ्रेंड्स के मार्क्स नहीं पूछेंगे, अपने भाई के बेटे के मार्क्स नहीं पूछेंगे, बहन के बेटे के मार्क्स नहीं पूछेंगे, खाली अपने बच्चों को अपने मार्क्स पूछेंगे। कितने पेरेंट्स ऐसे, हाथ उठाए। नो पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड डीप रूटेड कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव नेचर। क्यों हम किसी के मार्क्स पूछे, एंड नाउ, अच्छा वेरी गुड, वन ऑफ देम सेड, साहिल भाई की आई डोंट डू, मतलब नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सोइंग द सीड्स ऑफ कंपैरिजन अभी बच्चों के में। इसलिए क्यों, हम क्यों पूछते, कि हमारे पेरेंट्स ने हमको ऐसे ही पूछा था। हमारे पेरेंट्स भी जो शादी में खर्चा किया था वो किसको देख के किया था, बगल वाले को देख करके, हाँ दूसरे को देख करके, कंपटीशन में किया था ना। जरूरी है या नहीं मेरी जरूरी है। मेरी एक ही बेटी है ना, मैं तो अपने भाई भाई के बेटे से, अपने परिवार से ज्यादा ही करूंगा। तो हमको सारा दिन जो एनर्जी मिली कंपटीशन में, किससे मिली थी, हमारे पेरेंट्स से। अब हो सकता है उनको इस तरह के सेशंस नहीं मिले, दे फेल्ट कंपटीशन इज अ लाइफस्टाइल, बट देर इज नथिंग, नो वर्ड कॉल्ड कंपटीशन, इट्स जस्ट अ बिलीफ सिस्टम। मुझे मेरा बेस्ट करना है, मुझे इसलिए करना है कि लोग याद करें कि इनकी शादी है ना सबसे अच्छी थी, आज तक हमने ऐसी शादी नहीं देखी, इनका जो ड्रेस था, उनका जो पहनने का तरीका बेस्ट था, बाकियों से बहुत बेस्ट था। दिस इज व्हाट वी रियली एंजॉय, खाली बेस्ट नहीं एंजॉय करते हम। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, किससे, सो एंड सो से, तब अच्छा लगता है हमको। सो हमारी फीडिंग ही बहुत बार ऐसी हो चुकी है, हमारा हमारा जो अंदर का ब्लड ही ऐसा बन गया है, क्योंकि यही खाना खा रहे हैं, उससे अच्छा होना चाहिए, मेरा बेस्ट होना चाहिए, फुल स्टॉप।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बीज है। और फिर हम अगर इग्नोर नहीं करते उसको, उसको और भी बाकी सब भी ऐसे कर रहे हैं, दुनिया भी ऐसे करती है, एक्टर्स भी ऐसे है, मतलब सब जगह हर फील्ड में ऐसा है। हमने सोचा दिस इज कॉल्ड लाइफ, दिस इज अ लाइफस्टाइल, कंपटीशन इज अ लाइफस्टाइल। बिकॉज हु सेड वन हैज टू बी पॉपुलर? किसी ने कहा कि वन, इफ आई हैव टू बी पॉपुलर देन आई हैव टू बी द बेस्ट। किसने कहा कि जो बेस्ट होगा, पॉपुलर, दो दो जन पॉपुलर नहीं हो सकते, 10 जन पॉपुलर नहीं हो सकते, एक ही पॉपुलर हो सकता है। तो मतलब एक ही बेस्ट हो सकता है। आप अपने लेवल पे अच्छा परफॉर्म करो, यू विल आल्सो गेट गुड मार्क्स, फिनिश। लेकिन उससे मुझे अच्छा चाहिए, दिस इज द प्रॉब्लम। तो आई समटाइम्स आइदर बहुत एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, एंड देयरफॉर थक जाते हैं व्हाइल डूइंग इट। मैंने इतना उसको खुश करने की कोशिश की ना, मैं, क्योंकि वो दूसरा मेरा कलीग, ही इज ऑलवेज अराउंड द बॉस, आगे पीछे घूमता रहता है, और उससे बॉस बहुत खुश होता है। अब मेरी नेचर नहीं है, मैं, आई कैन नॉट डू, आई एम वेरी ट्रू, आई एम वेरी ओबीडियंट, जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे, मैं आगे होके मांगता नहीं हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन क्योंकि उसको ज्यादा फेवर मिल रहा है, वो आगे पीछे घूमता है, मुझे भी फिर वैसा चाहिए, मुझे भी उसको प्लीज करना पड़ता है। सो आई गो ऑन अदर्स चॉइसेस। तो समवेयर हमें देखना है, हमें अच्छा नहीं लगता है कोई कंपटीशन कोई हमसे करे या, बट समवेयर वो बीच छोटे छोटे रूप में होते हैं। जब ये मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, तुम्हारी तो ना दी बेस्ट थी साड़ी सबसे आज तो, हाँ, बाकी सब किसी की इतनी अच्छी नहीं थी, तुम्हारा जो पेंटिंग था ना दी बेस्ट था, बच्चे को ऐसे सुनने को मिल जाए, वो बच्चा देखो कितना खुश होता है। खुश होते हैं ना। हमेशा मैं सोचता हूँ हमेशा अपनी क्षमता के साथ कंपटीशन करना चाहिए, हमारा हाँ, ये क्या तो क्षमता है उसमें कंपटीशन करना चाहिए। बहुत अच्छा। फिर वो टेंशन में नहीं होता है, नहीं वो होता है, अपना उसका फोकस अपने ऊपर होता है। अपने ऊपर इधर उसका फोकस, वो चला भी रहा है लेकिन उसको देख रहा होता है, उसका है। फोकस डिवाइडेड होता है। हम्म। ठीक है ना ये बात? हाँ। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? कंपैरिजन कैसे मिटाए? तो दूसरा ये था कि कंपैरिजन और कंपटीशन भी नहीं, और दूसरा कोई भी तरह का कंपैरिजन भी, बिकॉज कंपैरिजन, करेक्शन करो, लेकिन करेक्शन अपने, करेक्शन के साथ जो एनर्जी होनी चाहिए, मोटिवेटिंग एनर्जी। कभी कभी हम किसी को करेक्ट करते हैं और करेक्शन में टॉन्टिंग बहुत होता है। अभी एक जन से बात कर रहे थे हम, तो मे बी शी इज नॉट अप्रूव, शी डजंट अप्रूव समथिंग ऑफ मी नाउ, इतने में कोई उनके रिलेटिव सामने आ गए, तो फिर वो बात करने लगे उनसे कि ऐसा है, ये ऐसा है ना। मैं तो इन लोग की तरह नहीं, ये संगीता बहन है ना, और वो वो भाई भी ऐसा ही है, मिस्टर जो एंड सो, कजन का नाम ले लिया, कि उनका भी मैंने देखा, मैं उसकी तरह नहीं है ये, और संगीता बहन ना ऐसी है। अब वो, दैट पर्सन इज नॉट नाउ इन द पिक्चर, वो कभी कभी ऐसे मिलते हैं। नाउ दैट सोल इज कंपेयरिंग मी विद दैट पर्सन, कि मैं तो इन लोग की तरह नहीं हूं, आई एम वेरी क्लियर, आई एम वेरी डेडिकेटेड, आई एम वेरी कमिटेड। तो कभी हम अपनी बड़ाइयां दूसरे के बुराइयों को कंपेयर करके करते हैं। मैं इनकी तरह नहीं हूं, मुझे नहीं इसकी तरह अच्छा लगता है, ये है मेरे, वो मेरा मामा का बेटा है, वो भी ऐसे है,
मैं इनकी तरह नहीं हूं। तो हाउ डू वी कंपेयर? सी, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए 2-3 लोगों को डाउन करना पड़ेगा। एंड देन आई से आई एम वेरी कमिटेड, मैं उनकी, आई एम स्टिल वैसे, इन लोग भी ऐसे, इन लोग भी ऐसे, मैं ऐसे नहीं हूं। क्वेश्चन नहीं है। एक बोर्ड मेंबर ने कंपटीशन पर कुछ बताया था, वो स्टोरी है। हाँ, कौन कौन सी स्टोरी है? वो तो वो स्टोरी बताई होगी। हाँ, सोनल भाई ने। एक बोर्ड मेंबर ने बताया था कि कंपटीशन, कॉर्पोरेट कंपटीशन पर उन्होंने कभी लेक्चर दिया था कि वर्स्ट काइंड ऑफ कंपटीशन, देयर आर 4 काइंड ऑफ कंपटीशन इन अ कॉर्पोरेट, ही सेड। द वर्स्ट कॉम्पिटिटर्स, वो अपने जूनियर से compete करते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं। सेकंड वर्स्ट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर्स अपने सीनियर से compete करते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। थर्ड काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर्स हु आर स्टिल एक्सेप्टेबल, वो अपने पीयर से compete करते हैं आगे बढ़ने के लिए, बट वो भी, जो पीयर से compete करता है वो भी एक लेवल में ही खेल रहा होता है। और बेस्ट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर्स ओनली compete with themselves, with their previous best। वो मुझे याद रहा तो था। व्हाई नॉट जस्ट एक कंपटीशन वर्ड ही हटा दे? बिकॉज समवेयर इफ दैट वर्ड इज देयर, वी ऑलवेज फील इट इज इन रेफरेंस टू समथिंग, समवन एल्स। नो, कंपटीशन अपने आप से compete करे, अपने आप का परफॉर्मेंस देखे और फिर उससे आगे मुझे करना है, फिनिश। व्हाई शुड आई इवन compete also with my previous best? तो जूनियर से कंपेयर करना इनसिक्योर, सीनियर से कंपेयर करना, तो इसलिए वो थ्रू आउट द टाइम बहुत डर डर में रहता है। डर के संस्कार है, एंड दैट संस्कार ओनली आस्क्स आवर चिल्ड्रन कि उसने कितना लिया, उससे तुम, उससे अच्छा है, उससे तुम आगे हो, उससे मेरी शादी अच्छी होनी चाहिए, उससे मेरे ड्रेस अच्छे होने चाहिए। तो वो संस्कार हमको करता है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन का संस्कार है ना। इफ इट्स इन माय ऑफिस, इट विल 100% बी इन माय रिलेशनशिप्स, दो इट बी द पर्सनल लेवल ऑल्सो। हस्बैंड वाइफ में कॉम्पिटिशन होते हैं। One wife was playing golf, she was better in fact than the husband, and बहुत अच्छे वो गोला बना रही थी। So when she was doing it, अब उसको वो हस्बैंड बार बार कहता है, ए जल्दी करो, पीछे लोग बहुत है, आप जल्दी करो, तो जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट, सो दैट हर concentration gets loses and she will fail। किस लेवल तक चला जाता है? मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हारी बड़ाई कोई करे। इफ आई एम नॉट able to listen the praise of others in front of me, मतलब I have a competitive nature। मेरे सामने उसकी बड़ाई ज्यादा की, मेरी कम की, मेरी कलीग की ज्यादा की, मेरे हस्बैंड ने मेरी नहीं की, मतलब मेरी सिस्टर की मेरी नहीं की, ये भी क्या है? somewhere there is a competition। why I can't hear or enjoy the praise of the other person? फिर मुझे डीपली इंफ्योरिटी हो जाता है, या क्रोध आएगा, या शक आएगा, आएगा ना। बिकॉज आई कैनॉट बी इंस्पायर्ड बाय देम। चलो उसने उनकी बड़ाई की कि देखो वो कितना अच्छे से केयर करती है, हाउ शी मैनेजेस द हाउस सो वेल, शी डज द ऑफिस वर्क एंड शी मैनेजेस द हाउस सो वेल। उन्होंने उनकी बड़ाई की, कैन आई बी वेरी हैप्पी? कैन दैट praise become an inspiration for me, or does that praise irritates me, yeah, makes me doubtful? So that I have to check somewhere वो competitive nature है। Then what I'll do is I want to get that praise, I'm not comfortable being that, वो मेरे संस्कार नहीं है, लेकिन मैं वैसी ही ड्रेसिंग करूंगी, मैं वैसी बोलूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सील देन दैट पर्सन, सो दैट उनके माइंड से वो व्यक्ति निकल जाए, मैं आ जाऊं।
So I am becoming artificial just because I want to be better than that person. और फिर क्या करते, पूरी लाइफ मैंने बहुत ट्राई किया एडजस्ट करते करते, बट अब मैं थक गई, कुछ फायदा नहीं हुआ. So why I was trying, why I gave that energy which I was putting into that as an adjustment, because it was not my nature. I wanted to copy someone else. मेरा नहीं था. I was not inspired, but मैं खाली कॉपी कर रही थी. इंस्पिरेशन अच्छा है, because then it becomes whatever I do, it becomes my choice. But जब मैं कॉपी करती हूँ to please you, तो it is your choice, it is not my choice. तो हम दूसरे के चॉइस से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और फिर भी फाइनली कोई नहीं मानता, कोई फिर भी उसकी प्रेस करेगा, या 2-3 दिन कर भी लेगा, यस नाउ इट्स परफेक्ट, अब ठीक है. बट अब उस ठीक है कि फीलिंग्स को मेंटेन करने के लिए भी मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है. कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत वो आगे चला जाए, उनके दिल में उनके प्रति और हो जाए, और रिगार्ड हो जाए, सम्मान हो जाए, उनको फेवर ज्यादा करे. सो आई वांट टू मैनेज, मेंटेन दैट सीट जो आपने मुझे दे दी कि आप बहुत अच्छे हो, अब आप अच्छे हो गए, तो वो सीट के लिए भी टेंशन होता है फिर मुझे. और फिर हम कहते हैं मैंने बहुत पूरी जिंदगी कोशिश करी इनको खुश करने की, पर अब तो मैं हार गई हूं. तो वो एक ना अंदर ही अंदर हम डिफीट हो रहे होते और दूसरे को खुश कर रहे होते. We were not victorious because it was not in a pleasing form. मजबूरी था. I wanted to be in good books of yours. तो मेरी मजबूरी थी, और वो मजबूरी से मैं लड़ रही थी, कर रही थी. मैं कर रही हूं, इसलिए हमारे यहाँ बहुत एक अच्छा फॉर्मूला है, वॉट एवर आई एम डूइंग इट इज जो जो द सुप्रीम के डायरेक्शन है उसको कर रही हूँ, फिनिश. Others are inspiration, or all the positive energy, the value system I see in others is an inspiration. But there is no competition कि उससे ज्यादा मेरा अच्छा होना चाहिए. दीदी इसमें मैं बोलना चाहूँगा दीदी, जो कॉम्पिटिटिव और कंपेयरिंग दो वर्ड हैं, क्या ऐसा कह सकते हैं ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ईर्ष्या और द्वेष का उद्गम स्थान कह सकते हैं? इससे ईर्ष्या और द्वेष का उद्गम स्थान हम कह सकते हैं. कंपेयरिंग और कंपिटिटिव वर्ड जो है ये उद्गम स्थान है उसका, जहाँ पर कंपेयरिंग और कंपेरिजन होता है वहीं से ईर्ष्या और द्वेष बनता है, ऐसा कह सकते हैं. आवाज थोड़ी शायद क्लियर नहीं है, इसको समझ में आया तो. मैंने ये कहा जो जो कंपिटिटिवनेस या ये कंपेयरिंग वर्ड है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन फॉर ईर्ष्या और द्वेष कह सकते हैं उसका. ईर्ष्या और उद्गम द्वेष, स्थान. 100%, 100%. उसका तो फिर जेलेसी होगी ना, इनसिक्योरिटी jealousy होगी, होगा. मतलब जेलेसी नहीं तो होगी, फिर हेट्रेड होगा ही होगा. Therefore I don't like the sister because my husband doesn't मुझे उससे ज्यादा कंपेयर करते हैं. I don't like that friend क्योंकि always my wife always compares me with that friend. So I try to start hating that friend जो मैंने इंट्रोड्यूस किया उनको, और अभी वो उनको वही अच्छे लगते हैं. I don't want to be with him. हम लोग पहले इकट्ठे जाते थे जहां भी जाते थे, अब हम इकट्ठे नहीं जाते क्योंकि I don't like that. मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये जो करते वो करते, लेकिन मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता है? Why can't I enjoy the praise of others? Because मैं भी वैसी, वो भी वैसी, उनके ही क्यों गुण गाए? दिस ईगो. तो जहां ईगो होगा ना, वो कंपटीशन होगा, वहां हेट्रेड होगा. सो
ओके दैट सोल इज डिफरेंट, आई सोल, अच्छा वो फिर भी कंपेयर करेंगे, वो फिर भी compete करेंगे। मेरे को क्या समझना है कि यस, मैं वॉट एवर आई एम डूइंग, सपोज कोई मेरे टैलेंट से कंपेयर कर रहे हैं, मेरी कुछ वैल्यूज से कंपेयर कर रहे हैं, इफ इट इज रॉन्ग आई विल सर्टनली डू इट। वो प्रेजवर्दी है, शी इज मोर कैरिंग, शी इज मोर अंडरस्टैंडिंग, वो प्रेजवर्दी है, आई बी इंस्पायर्ड, मैं उसको एक्नॉलेज करके अपने लाइफ में लाऊंगी। और अगर वो फिजिकल है तो जो मैं हूं वो मैं हूं, जो मेरी कैपेसिटी है मैं उतना ही कर सकती हूँ, आई कैन नॉट डू बियॉन्ड दैट, सो स्टिल इट डजेंट मैटर टू मी। आई वोंट टेक इट कि अब मुझे कैसे भी करके करना है या उनको हेट करने लग जाओ, नो, उनकी अपनी कैपेसिटी मेरी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि एवरीवन इज अ सोल, डिफरेंट है। they don't the wife or the husband, the spouse may not understand, the colleague may not understand, but मैं तो समझती हूँ कि मैं आत्मा अलग, वो आत्मा अलग है, तो अलग अलग तो होंगे। हम जब अपने अलग को इम्पोर्टेंस और एग्री करते हैं तब हम कंपेयर नहीं करेंगे, उन लोग तो उनको पता नहीं है ना, सो आई एम्पथाइज विद देम, आई हैव कंपैशन दैट दे डोंट नो दिस, बट आई एम क्लियर कि इट वुड बी डिफरेंट ओनली। फिर हम करेंगे, दूर रहते हैं ना इसलिए आपको अच्छे लगते हैं, नजदीक होने रहने दो फिर पता चलेगा आपको, वो फ्रेंड दूर है ना, तब तक आप उसकी बहुत प्रेस करते हो। सो वी ट्राई टू पुट दैट अदर पर्सन डाउन इन द आईज ऑफ द वन हु इज कंपेयरिंग अस विद देम। तो इसलिए दूसरा संस्कार अपने में डेवलप कर रहे हेट्रेड का। सो देयरफॉर व्हाट शुड आई डू? नो कंपैरिजन, ठीक है। तो if we just see how would life will become, लाइफ अगर हम कंपेयर करें नहीं, कॉम्पीट करें नहीं, अंडरस्टैंड करें ऑफ कोर्स, तो एक एंजॉयमेंट हो जाएगी। तो इसलिए गेटिंग रिड ऑफ दिस कंपटीशन, एंड रियली यू विल फील कि आई विल पूरी एनर्जी अपने पर लगाना, फोकस ऑन माई सेल्फ, नथिंग एल्स, I'll just focus on my best, perform better than my previous performance. ये हम करेंगे, इजी है। So just to focus on this, let's see we can do it the best. तो एक छोटा सा मेडिटेशन of this, अपने आप को सब बातों से फ्री करते हैं। I am a point of light, pure energy, very powerful. I am what I am. मुझ आत्मा में बहुत जन्मों के संस्कार है। I understand I had been in a long journey, and everyone around me also has been in a long journey. सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे उनके संस्कार बने हैं। सब अपने सोल्स को सामने लाओ, बच्चों को सामने लाते हैं। ये आत्मा है, छोटा है लेकिन बहुत सारे जन्मों के संस्कार है। अपने स्पाउस को सामने लाओ। ये सोल बहुत सारे शरीरों को यूज करते करते आज इस शरीर में आए हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेके आए हैं। ये आत्मा अलग है। सारे कलीग्स को सामने लाते हैं। एवरीवन इज अ सोल with the deep wounds, if at all, of many past. I will throughout my journey, कुछ भी ऐसा हो रहा है, I understand
उनके संस्कार हैं। स्ट्रॉन्ग कंपैशन है, परमात्मा से कंपैशन की किरणें मेरे ऊपर आ रही है और वो एनर्जी उस सोल को मैं दे रही हूँ। वेरी ब्यूटीफुल सोल, but having different experiences. I understand. I am a very understanding person. This attitude, I am now ready to do actions to this body. Om Shanti. So next Tuesday, Happy New Year for you, will be, and we'll start a very new special series next Tuesday. So bye bye to the 2023. All must have gained a lot being with us. We also have learned from you, and I'm sure we are giving a good farewell to the 2023. और जमी पूछना लास्टू अब हम कोई भी पुरानी कोई भी बात को हम लेकर नहीं जाएंगे, सारी कंपैरिजन पुराने संस्कार को छोड़ते जाएंगे, मतलब 2023 को छोड़ दिया। ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू once. Thank you, Didi, and thank you everyone for the session today. Thank you. Let us meet next week with a new series. Happy New Year to all and have a nice day.